हेलो एवरीबॉडी। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो यू हैव कम टू द राइट प्लेस। आप सही जगह पे आए हो। वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम विद प्लैनेट वेल्थ यूट्यूब चैनल एंड पॉडकास्ट। आई एम ब्रिजेश परिक, father of two lovely kids, husband to a loving woman. I'm an entrepreneur now turned into a wealth coach, and I'm on a mission to help 1 lakh families like yours to live a financially very free life and achieve financial freedom during your life. So आज हम बात करने वाले हैं मेरी आईपीओ सीरीज के जो अभी आईपीओ आज शुरू हुआ है, मिसेस बैक्टर्स फूड, उसके एनालिसिस और उसके बेसिस पे आप उसमें कैसे इन्वेस्ट करें, आप अपनी स्ट्रेटजी कैसे इस आईपीओ के लिए बनाए, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। So basically, Mrs. Baxter Food Specialities Limited was incorporated in 1995, one of the leading companies in premium bakery segment and premium and mid-premium biscuit segments in North India. The company's product portfolio mainly consists of two categories of product: biscuits, which is cookies, creams, crackers, digestives, etc., and bakery products, which is bread, buns, pizza, bases, and cakes, etc. Mrs. Baxter, promoted by Mrs. Rajni Baxter, manufactures and sells biscuits under his brand name Mrs. Baxter's Cremica, whereas bakery products are manufactured under the brand name of English Oven and offered in the premium market segments such as Delhi NCR, Mumbai and Bangalore. As of 30th June 2020, its bakery segment has a total of 96 products and biscuit segment has a total of 384 items which is being manufactured by the company. All of its products are manufactured in-house across 6 strategically located manufacturing units in 5 different cities, which is Maharashtra, Karnataka, UP, Himachal Pradesh and Punjab. The company has a very strong distributor network of 154 super stockists, 644 distributors supplying products through 4,58,000 retail outlets and 3,594 preferred outlets. It sells its products to 23 states in India and also exports its products under its own brand name and the third-party private labels to almost 64 countries all over the world. So this was a brief history of the industry. Mrs. Baxter's Food IPO market lot size is 50 shares. A retail investor can apply up to 13 lots, that is 650 shares of rupees under 1,87,200. The object of the issues, matlab where the funds would be used. The funds raised through Mrs. Baxter's Food IPO are proposed to be utilized towards below objects. The first is to finance the cost of Rajpura expansion project and to meet general corporate purposes. The IPO is opening from 15 December, which is today, and will be closing on 17 December 2020. It's a book build type of IPO. The face value of the share is rupees 10 and the IPO is priced at the lower end of the price is rupees 286 and at the upper end of the price is rupees 288, right? And it will be listed at BSE and SE both. So this is the objective where the funds would be used and how the IPO structured. The competitive advantage of the company: a leader in biscuits and bakery segments in North India, well diversified product portfolio, all major food certificates such as BRC, USFDA and FSSC, leading biscuits exporter to 64 countries, modern production processes, strong sales and distribution network we discussed, and it is the largest suppliers of buns to quick service restaurants such as Burger King, जिसका IPO भी recently list हुआ, Yummy Restaurants, Connaught Plaza Restaurants and etc. If you look at the financials of the company, total assets where you can see that 38 March 18 में जो total asset था that was around 5110 lakh rupees, वहां से बढ़ के हुआ है 6087 lakhs. रेवेन्यू भी बढ़ा है और साथ ही साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप देख रहे हो कि वो मेंटेन कर रहे हो लोग, राइट? एनालिसिस करें आईपीओ की, सो उसकी जो बिस्किट की बिजनेस है उसकी ग्रोस मार्जिन 44% है और जो बेकरी बिजनेस है उसकी ग्रोस मार्जिन 51% है। और FY 1920 की जो बिजनेस की टर्नओवर थी उसमें से 22% वर कंट्रीब्यूटेड बाय द एक्सपोर्ट्स। अगर कंपनी की कंपटीशन के बारे में बात करें
तो ब्रिटानिया, नेस्ले, आईटीसी ये जो मल्टीनेशनल्स है वो तो है, साथ में डायमंड और डीएफएम जो फूड्स है वो भी उसकी कंपटीशन में आते हैं. नाउ लेट्स लुक एट द वैल्यूएशन पैरामीटर, प्राइस टू अर्निंग रेशियो. ब्रिटानिया की प्राइस टू अर्निंग रेशियो 11 दिसंबर को 52.36 थी, नेस्ले की 85.46 थी, प्रताप स्नैक्स की जो डायमंड बिस्किट बना रहा है उसकी थी 113.09 और डीएफएम फूड्स की थी 98.79. तो इसी तरीके से मिसेस बैक्टर की बात करें तो फुल्ली डाइल्यूटेड मतलब इश्यू के बाद की जो इक्विटी रहेगी ये फुल्ली डाइल्यूटेड इक्विटी बेसिस पर मिसेस बैक्टर इज प्राइस एट अराउंड 55.7 प्राइस टू अर्निंग व्हिच इज स्लाइटली हायर देन द ब्रिटानिया, राइट. सो देयर आर फ्यू चैलेंजेस आल्सो मिसेस बैक्टर को अगर आगे अपने ग्रो करना है तो. सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो ये है कि मार्केट शेयर लो है, बट इट इज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी. अगर वो ठीक तरीके से बिजनेस को स्ट्रेटेजाइज करेंगे तो वो अपनी मार्केट शेयर को आगे बढ़ा पाएंगे, और मार्केट शेयर बढ़ा पाएंगे तो कंपनी की प्रॉफिट बढ़ेगी, और अगर आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उससे मुनाफा होगा. और दूसरी चैलेंज उनकी ये है कि कंपटीशन विद मल्टीनेशनल्स लाइक नेस्ले एंड ब्रिटानिया, तो उसकी सामने जो डीप पॉकेट वाली कंपनी उसके सामने मार्केट जो शेयर बढ़ाना है, अपनी बिजनेस को बढ़ाना है, वो उसकी चैलेंज है. तो अल्टीमेट फ्यूचर ऑफ मिसेस बैक्टर वुड डिपेंड ऑन हाउ दे आर एबल टू मैनेज देयर दिस टू चैलेंज, और वो अपने बिजनेस को आके कैसे बढ़ा पाते. अगर आप उसके सितंबर क्वार्टर की परफॉर्मेंस को देखें तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैज इंप्रूव्ड, मतलब 6 महीने में बहुत ही इंप्रूव हुआ है. तो वजह यह है कंपनी की वजह से कि ये जो कोविड की वजह से उनकी जो पैकेज जो आइटम रहती है उनकी सप्लाई बढ़ी हुई है, तो ये इसकी कोविड की वजह से जो मार्केट में पेनिट्रेशन हुआ है, अगर वही पेनिट्रेशन कंपनी आगे लेके जाती है तो कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखाएगी, और अगर आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा पैसे मिल सकेंगे. सो आइडियली ओवरऑल माय व्यू फॉर दिस कंपनी इसकी आप उसको लिस्टिंग गेन या मिड टर्म गेन के लिए आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं. अगर कंपनी ये चैलेंजेस मीट विद कर सकती है देन यू कैन टेक अ लॉन्गर टर्म स्टांस. तो अभी आपको अगर इस आईपीओ में इन्वेस्ट करता है तो या इधर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए करें, या तो मिड टर्म में इन्वेस्ट रहते हुए अपने प्रॉफिट बनाने के लिए आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो. सो अगर आप इसी तरीके की ये जो आईपीओ के लिए बनी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की है, अगर आप इसी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, इफ यू विश टू फोकस ऑन कीपिंग एंड ग्रोइंग योर मनी, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ब्लू बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि कभी मैं इस तरीके की वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. आप ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं मेरे planetworld.in के ऊपर, वहाँ पे कुछ एजुकेशनल वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं. एक अच्छी पर्सनल फाइनेंशियल लिटरेसी साइट है moneycraft.com, आप उस पर भी जाके अपनी बाइट साइज वीडियो देख के अपनी लिटरेसी बढ़ा सकते हो. मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हो प्लेनेट वेल्थ, या मेरे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लो, फाइनेंशियल वेलबींग ग्रुप. और सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप मेरी जो व्हाट्सएप नंबर है 9328190022 को प्लेनेट वर्क नाम से स्टोर कर लो, एंड देन सेंड मी एन मैसेज, ऐड मी करके अपना नाम भेज के मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज दो. आई विल ऐड यू इनटू माय व्हाट्सएप फाइनेंशियल लिटरेसी ब्रॉडकास्ट ग्रुप, सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड सम वैल्यूएबल कंटेंट, आप उस कंटेंट को की नोटिफिकेशन रिसीव करोगे और आपको अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने में हेल्प मिलेगी. Thank you for watching this video. May God shower abundant wealth to you, and मिलते हैं अगले वीडियो में. Thank you.